Hello and very good morning, my dear students. This is my revision video lecture on the topic of dimensional analysis and error. These two chapters are the part of our unit test syllabus for plus one physics class. And I'm going to revise this one once again more. Okay, so let's start these topics. So first of all, in case of dimensional analysis chapter, but most of question will come to you as on the basis of objective based. ठीक है, so objective based questions आपको सारे के सारे आएंगे on the from these two chapters. One chapter है dimensional analysis and second one is error analysis वाला. Okay, and in the first part is the dimensions of physical quantity. You know that very well that what are the dimensions of a physical quantity. As we have already teach you, I have already teach you that a dimensional formula and equations. You have a given all the physical quantity can be expressed in term of mass, length and time. Okay, in case you have a velocity v, you know what is the dimensions of velocity? It is meter per second. Meter per second. And we know that meter per second, meter is unit of length, so L, and time unit is second, so T inverse. So there is no mass, so the mass value is 0. Okay, so you have a dimensional formula for few physical quantities and their SI units. A very important table for physical quantities given ahead. So this is the table of physical quantities. For example, area, volume, density, specific gravity, specific volume, linear speed, linear acceleration, linear momentum, force, force constant, pressures. Okay, इनके सारे के सारे forms you should understand, you should know their formulas, and then after you should also learn dimensions formula. Okay, for example density, what is that? For example question आपको आ सकता है, write down the dimensions of density. Then the dimension formula of density is, you know what is the formula of density? Mass over volume. Mass over volume, so mass for m, volume के लिए बनेगा l cube, because मास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा बेटे? वॉल्यूम का आएगा लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, एंड ईच कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ लेंथ. मेजर करते हैं ना, लेंथ की फॉर्म ही होता है. सो एल क्यूब, सो एल इनवर्स टी का पावर 0 आ जाएगा, बिकॉज देर इज नो टाइम, सो देर टाइम वैल्यू 0 है, सो टाइम टी इज इक्वल टू 0. सो एम एल इनवर्स के क्यूब एंड टी का 0. So this is the dimension formula of density. Similarly, you have to learn all these formulas. Okay, I am already sending you these all questions. और बेटे most of the questions I am asking from this topic. Okay, तो dimensions formula जिसको बच्चे को याद हो जाएंगे उसका question, वो most of the questions he is able to solve that. Okay, see the next part. The second page also consists a dimension formulas. Okay, velocity, gradient, coefficient of viscosity, Reynolds number, radius of gyrations, moment of inertia, angle. तो आप सब चीज़ों को दो बार याद कीजिए, एंड याद करने के बाद इसके dimensions आपको आने चाहिए. एंड remember, more than 40% of your question paper consists this dimensions formula, and if you know and understand these formulas, then it is very simple for you to solve the questions in the unit test. Okay, and these are also very important questions. ठीक है, so बेटे page number 1 and this one, so I can give you an important part. So question 1 2 these, ठीक है, ये सब questions जो हैं वो very important है. ये 12 questions आपने इसके याद करने हैं. ठीक है, dimensional formula of these all, एंड इसके साथ आपने याद करना है पिछले वाले ये दो. ठीक है, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस, एंड 40 डिमेंशंस फॉर्मूले अपने ऊपर वाले एंड 12 नीचे वाले. कितने हो गए बेटे? 52 के बाद सम मोर क्वेश्चंस आर गिवन लाइक दिस वन. ये जो डिमेंशन फॉर्मूला फिजिकल कांस्टेंट्स हैं,
like refractive, work done, Planck constant, wave number, Rydberg constant, Faraday, ठीक है, and up to this 7. So 52 and 7, let it be 8. तो total बन गए आपके 60. These 60 dimensions are very very important. Okay, so let's start next topic. The next topic consists that what are the dimensions? Okay, so the next topic is a different type of variable and constants. You know what are these one? Dimensional variable whose value varies. Non-dimensional variables, the quantities who have a variable whose value is fixed ones, and dimensional constant whose value is constant. Non-dimensional constant which have no dimensions. Use of dimensional equations and checking of correctness. These question we have already done in my last, you can see my last videos for its better understanding, that checking the accuracy of relations, and this very important principle, that is principle of homogeneity. What do you mean by principle of homogeneity? Whenever the dimensions in left hand side is equal to the dimensions in the right hand side, then we said that it obey the principle of homogeneity of dimensions. So on each side the dimensions should be same, then it obey the principle of homogeneity of dimensions. For example, let's see one question like half mv square is equal to mgh. तो बेटे what are the dimensions of half mv square? Half is constant, तो मास है तो मास का वैल्यू उतना रहेगा. वेलोसिटी का व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी? मास का यूनिट बनेगा m, वेलोसिटी का यूनिट्स होता है बेटे एल टी इनवर्स का स्क्वायर. सो स्क्वेयरिंग ऑफ दिस वन इज m l square t minus 2. So left hand side of this equation dimensions is this. Now down the right hand side the dimensions value is mgh, where m is mass, g for acceleration due to gravity, the value is lt inverse square, and h represent height, with that is the length. Okay, again we multiply, we will see the dimensions on left hand side is equal to that dimensions at right hand side. So it means that this relations is correct and this relations obey the principle of homogeneity of dimensions. Okay, and some more questions related with this is, so but a lengthy question, ये जो numericals and these questions will not come, and the question will come on the basis of mostly of objective based questions. And if you have these two chapter, in chapter के end में भी आपको कुछ objective type questions given है. You should try these all questions. These questions are very important. Okay, because question paper is also from the objective based questions, that consist questions, and you should do lot of practice in solving objective type questions rather than solving these lengthy numericals. And the last topic is this one, conversions of one system of unit into another system. We have done this one also in my last video lectures. So this chapter is finished, and in this chapter most of questions are related with the checking the correctness, finding the values of dimensions, and finding the values of dimensions, that what is the dimensions of this. Okay, so let's start next chapter, that is error. Okay, so in my next chapter, that is error analysis chapter, in this chapter some questions will come from significant figure. Some questions come from significant figure. For example, these are the few rules. All non-zero digits are significant. Okay, तो जिनके all non-zero digits are significant. So 1, 5, 2, 4, 8 contains 5 significant figure. तो अगर मेरे पास यहाँ पे वैल्यू होती, for example 5000, then how many significant figure are there? Only one. ठीक है, because zeros are not significant figure, all non-zero. तो जो non-zero digits होंगे that are the significant figures. All zeros occurring between two non-zero digits are significant. ठीक है, तो non-zero digits के in between जितनी digit zeros आएंगी that will also be a significant figure. So it consists 1, 0, 3 and 3, 6 significant figure. Third is
All zeros to the right of decimal point and to the left of non-zero digits are never significant. Okay, तो decimals के जो right hand side जितनी zero आएंगी are not the part of significant figures. So 0.00 are not, but 967 these represents three significant figures. All zeros to the right of decimal point are significant if they are not followed by non-zero digits. So 30.00, ठीक है. सो एट द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स, तो इस इक्वेशंस के राइट में क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स, दैट इज 3. सो दिस कंसिस्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट. सो मतलब 0 पॉइंट के बाद अगर 7 8 के पीछे जितनी भी जीरो आ जाएंगे, ऑल विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, तो चाहे दो नॉन जीरो डिजिट्स के इन बिटवीन जीरो आ जाए, चाहे नॉन जीरो डिजिट्स के लास्ट में जितनी ज़्यादा जीरो आ जाए, ऑल विल द पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर. फॉर एग्जाम्पल 2020 कंटेन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, तो इसके फर्स्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही काउंट होंगी, लास्ट वाली काउंट नहीं होगी. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन द फर्स्ट केस, जैसे 5000 है तो ओनली वन non-zero digits, that is 5, will be a significant figure. तो बेटे significant figure से related आपको 5 से 6 तक क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस. तो उसमें आ सकता है कि इसके फॉर एग्जांपल दिस वन क्वेश्चंस. ठीक है, कि ये इस क्वेश्चंस में बताइए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर. तो आप में क्वेश्चंस के ऑप्शन होंगे 1 2 3 4. तो आपको पता है दीज ऑल द 4 डिजिट्स आर नॉन जीरो डिजिट्स. तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी बेटे, 1 2 3 4, तो 4 होंगी. तो जो 4 ऑप्शन वाला होगा वो होगा सही राइट आंसर आपका. सो 4 हो गया. अब इसका क्वेश्चन देखिए 0.023, तो 0 डिजिट्स ही है ना लेफ्ट हैंड साइड, तो ये लास्ट के 2 डिजिट्स विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर्स. रूल भी बताया है ना साथ में कौन सा फॉलो होगा. एंड इन दिस पार्ट 6.0023, तो जीरोज जो कहाँ आई हैं, दो नॉन जीरो डिजिट्स के इन बिटवीन, सो दैट दीज जीरोज विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. सो दिस विल कंटेन 5 सिग्निफिकेंट फिगर. इसमें चेक कीजिए 2.520. अब डेसिमल के राइट साइड पे अगर नॉन जीरो डिजिट्स आता है और उसके पीछे चाहे जितनी मर्जी जीरो होंगे, सब किसका पार्ट आएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर का. तो यहाँ पे 4 के 4 आएंगे. सो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. और यहाँ पे बताइए कितने आएंगे, 0.08240 है ना. सो 82 से लास्ट में सारे आएंगे. और यहाँ पे 4200 है, बताइए 4200 है तो यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, तो जो नॉन जीरो डिजिट्स होंगी, ओनली दोज डिजिट्स विल बी ए सिग्निफिकेंट फिगर. रेस्ट ऑफ दीज टू आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर. सिमिलरली यहाँ पर भी 3 आएंगी और यहाँ पे कितनी आएंगी, ये सारी की सारी, क्योंकि डेसिमल के बाद जितनी भी जीरोज आएंगी और उसके डेसिमल के राइट हैंड साइड पे अगर नॉन जीरो डिजिट्स हो और डेसिमल के राइट साइड जितनी मर्जी जीरो होंगी, सब की सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी. तो यहाँ पे आएगी 5. सो यू कैन सी द आंसर इज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, तो बेटे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड डू दिस क्वेश्चंस. एंड मोर क्वेश्चन इज दैट, इसमें आपका आएगा ना एडिशन, सबमिशंस, दीज यू कैन डू दिस पार्ट आल्सो. ओके, सो वी कैन ट्राई सम मोर क्वेश्चंस लाइक एरर. सो एरर से रिलेटेड बेटे क्वेश्चंस थे कि रैंडम एरर, ठीक है, ग्रॉस एरर, बट दीज ऑल आर द थ्योरी पार्ट. ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द एरर इज फ्रॉम द एरर के न्यूमेरिकल. तो जितने एरर के न्यूमेरिकल्स होंगे ना, तो क्वेश्चन वहाँ से सारे के सारे आएंगे आपको. फॉर एग्जाम्पल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट्स आर, ये लेंथ है एंड दिस वन इज ब्रेथ respectively and have been measured to the accuracy of 0.1 centimeter. Find the percentage error in the area of the object. अब देखिए हमने क्या फाइंड करनी है, परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर क्या आएगा, एरर किसका फाइंड करना है, एरिया का. एरिया क्या होता है, ए. सो डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100 क्या बोलेगा ये, दिस इज द परसेंटेज एरर. तो आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो डेल्टा बी अपॉन एल
डेल्टा बी अपॉन बी, इसको भी मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, बस यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। एंड यू विल नोटिस दैट रिस्पेक्टिवली, सो एरिया कितना था बेटे, एरिया वैल्यू इज 25.2 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू आ जाएगा एरिया का। एंड व्हाट इज द वैल्यू, नो, ओके, सो लेंथ एंड ब्रेथ, दिस वैल्यू इज लेंथ, दिस वैल्यू इज ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ का ओरिजिनल वैल्यू है एल और बी, ये आप नीचे पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को, बट द वैल्यूज ऑफ कितनी ऐसी वैल्यू आ रही है, उसमें जो परसेंटेज एरर कितना है 0.1 सेंटीमीटर एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। सो ऊपर डेल्टा एल जो जे चेंज हो रही वैल्यू डेल्टा एल की, वो कितना आएगा 0.1 अपॉन वैल्यू ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 0.1 अपॉन वैल्यू ऑफ ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो आगे हम इसको सारे को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में वैल्यूज आएगी ना, उसको हम ऐड अप कर लेंगे, ऐड अप करके लास्ट में वैल्यू आ गया 1%। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक दिस क्वेश्चन, तो बेटे ये क्वेश्चन मैंने दिया होगा और नीचे ऑप्शन होगा 1%, 2%, 3%, 4%। आपको इसको सारे को सॉल्व करना होगा, सॉल्व करने के बाद आपको मैचअप करना होगा, जो दो राइट आंसर होगा उसको आपने क्लिक करना है, ठीक है। सो लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस। तो बेटे ये जो पार्ट था एरर से रिलेटेड, ठीक है, दिस इज ऑल द थ्योरी पार्ट एंड द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम द पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल पोर्शंस। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है इसमें कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है बेटे। तो आपने जो भी क्वेश्चंस गिवन होगा उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यूज़ होगी यू हैव टू फाइंड आउट दैट वैल्यू। तो जो ऑप्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपने सही क्लिक करना है। Okay, once more questions. A physical quantity x is given by x is equal to a square b cube upon c under root d. If the percentage error of measurement in a, b, c and d are, अब देखिए ये आपको एरर गिवन है, एरर कितनी गिवन है बेटे 4, 2, 3 एंड 1। तो ए बी सी डी चार पार्ट हैं और चारों की आपको एरर दी है। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन एक्स, जब भी परसेंटेज एरर होता है तो हम जो भी परसेंटेज वैल्यू होती है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व बेटे हम इसको कैसे करेंगे, ये यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। अब देखिए जो भी उसका पावर होगा ना, वो पावर उसके आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, इंटू इंटू ए आ जाएगा, प्लस सेकंड पार्ट कौन सा बी, बी का पावर कितना है 3, तो ये बनेगा 3 और बी आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। अब बात आएगी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का पावर कितना है सी का 1, लेकिन अगर हम इसको नोमिनेटर ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव नहीं होगी, तो हम साइन जो होगा वो नेगेटिव का यूज़ नहीं करेंगे, तो उसमें भी हम पॉजिटिव का साइन ही यूज़ करेंगे। तो वैल्यू आ जाएगा सी, और क्या वैल्यू आएगा प्लस डी, ये डी का अंडर रूट है तो इसकी वैल्यू कितनी 1/2, तो ऊपर जाएगा तो वैल्यू फिर से कितना बनेगा डी का पावर -1/2, लेकिन वो नेगेटिव हम आगे नहीं आएंगे, साइन जब इसको खोलेंगे तो प्लस प्लस का साइन ही मैग्नीट्यूड की वैल्यू में हम लेंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमने जो भी इसकी परसेंटेज एरर है ना 4, 2, 3, 1, वो सारी की सारी ए बी सी डी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। ये आप देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन ए प्लस 3 परसेंटेज एरर इन बी प्लस परसेंटेज एरर इन सी प्लस हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन डी। अब समझ आया इसको कि हमने कैसे सॉल्व करना है। नीचे वाला जो भी डिनोमिनेटर अगर ऊपर आएगा तो उसकी पावर जो होगी वो माइनस में हो जाती है, लेकिन अगर हम उसको आगे मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो हमने इसको पॉजिटिव में ही लिखना होगा, ठीक है। तो ऐसी फॉर्म में लिखने के बाद ये वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो उसको सॉल्व करेंगे एंड द लास्ट में हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटे। सो ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चंस गिवन है बेटे। ओके, सम मोर क्वेश्चंस इज आल्सो गिवन टू यू ऑन द बेसिस ऑफ, तो बेटे मैंने आपको कुछ पीडीएफ फाइल सेंड आउट की है, आपने इन सब पीडीएफ फाइल में जैसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, तो जैसे ये सिग्निफिकेंट फिगर आपने फाइंड करनी है, इसकी लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ मेटल शीट इज गिवन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपने शीट्स ऑफ सिग्निफिकेंट करेक्ट फिगर, तो आपने इसको करेक्ट फिगर को भी नोट डाउन करना है। फॉर द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट सिग्निफिकेंट फिगर उसके साथ रिलेटेड है, आपको सिग्निफिकेंट फिगर के साथ, डायमेंशन फॉर्मूले के साथ
और एरर के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चंस और पीडीएफ फॉर्म में आपको सेंड कर रहा हूँ। यू शुड ट्राई दीज ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा और डायमेंशन फॉर्मूले बहुत स्कोरिंग मार्क्स में आएंगे। तो इसलिए जो बच्चा डायमेंशन फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेगा उसका क्वेश्चन पेपर बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, इजी हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। और परसेंटेज एरर के मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करना ट्राई करना, सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। सो दीज 2 चैप्टर कंसिस्ट दीज इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है बेटे। सो अच्छे से तैयारी करके आप इसको यूनिट टेस्ट में अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस देना। थैंक यू बेटे।